All right. Anji, good morning. Good morning, yeah, good morning. Meme नहीं देखते हो? I'm a big meme fan. I hope all of you are. Anji, good morning. Good ETM. मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ. बल्लभगढ़ वाली ज्योति से मेरा कोई रिलेशन नहीं है. One thing I can guarantee, आज सबके लेवल निकलेंगे. For sure after this session. बताऊंगा क्यों after this session. So I'm happy that I'm here. Thanks to you guys for selecting my CFP, giving me the opportunity to talk and describe, and not very technical in terms of what is observability, because we've had some very nice sessions by my co-fellow speakers. So I won't bore you. Trust me. खाना सामने है. Give me 30 minutes. टूट के खाएंगे. ठीक है? Cool. So click boom from lab to lightning, monitoring your 1 million plus player gaming app. वो 1 million plus जानबूझ के डाला attention focus मिलता है. I'll start with who am I. My name is Siddharth Vijay. I am AVP Engineering, hopefully to become VP Engineering at Baazi Games. Pokerbazi. आप लोगों में से pokerbazi, who have heard of pokerbazi? कोई खेलता है pokerbazi? अरे वाह, great. We'll have a word after the session. So I'm AVP Pokerbazi. I've joined Baazi in 2020. This is my 5th year running now. सोचा नहीं था 5 साल रुकूंगा, but रुक गया. कभी-कभी होता है, आप जो नहीं सोचते वो कर लेते हो. This is my overall 12th year running in the industry. I started in 2012. TCS, anyone who started from TCS? Good. तो 2-4 ही है, तो जनरली हर जगह बहुत मिलते हैं. So good. So I also started from TCS. I was a .NET developer for a couple of years initially. उसके बाद configuration management आ गया, build and release आ गया, fancy term DevOps आ गया, अभी platform engineering में बोलूँगा आगे. तो एकदम इवॉल्व होते होते बहुत सारा फैंसी टर्म्स आ गया है. मोटा मोटा घूम फिर के वही है. सर्वर था, सर्वर से क्लाउड पे चला गया, क्लाउड पे सर्वर चल रहा है. पहले हम खुद करते थे, अब कोई और करके दे रहा है. पहले फ्री में होता था, अब पैसा देते हैं. बात करते हैं, कुछ ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है. I am looking at multiple verticals since Baazi. When I joined in 2020, I joined as a solutions architect primarily for DevOps and cloud. It was at that time when Baazi was not just Baazi actually. उस time 2020 में जब COVID आया, तो there were a lot of DDoS happening across the industry, and gaming was under scrutiny that time. तो Baazi पे बहुत सारा DDoS चल रहा था. I was specifically hired at that time at Baazi, and thankfully I got an opportunity to understand and see at scale that how does the DDoS happen. I mean, not that we were doing it, but जब खुद पे होता है तब आपको पता चलता है कि साइबर अटैक क्या होता है, कैसे उसको मिटिगेट करते हैं, how do you manage your infra. I mean, observability का भी talk about, but I want to start the journey from here so that I give you a context कि observability will obviously eventually come at the end, but starting में there are a lot of things जो funnel बन जाती है, last में observability आगे जो रुकती है. So that is when I joined Baazi. Then gradually उसके बाद I started looking after platform engineering, databases, QA, project management, backend engineering पूरा. So मोटा these are 4-5 verticals that I look at Baazi: cyber security, security implementations and what. 12 साल हो गए इंडस्ट्री में, 10 साल खुद के लिए काम कर रहा है. 2 साल से I started giving back to the community. I've been doing my best whenever I get time. I attend these sessions. I go for conferences. I give talks. Luckily last year Singapore भी गया था एक talk देने, so I have had that international exposure as well. This year also I'm planning to go to Europe for one of my talks. So yeah, I mean the agenda has been just so that when you come in these sessions, it is not that what you learn from here. It is about that vibe and that feeling that you feel that generally आप एक stand up session stand up comedian को देखने चले जाओगे, कोई क्रिकेट का मैच देखने चले जाओगे, IPL देखने चले जाओगे. But when you get here, there's a different feeling. It's a different gist which you feel कि इतने सारे लोग हैं, they are excited about learning something, they are excited about talking something. फ्री का खाना मिलता है वो बात अलग है, but उसके अलावा भी there are a lot that you get from these sessions. अच्छा, before I start, I really want to thank and appreciate the college buddies out here. I mean, I really admire you guys spending your Saturday with all of us. मैं जब कॉलेज में था, Saturday या तो इस टाइम पे सो के उठते थे या सोने जा रहे होते थे. रात भर पढ़ाई करते थे ना. Right, but really, I mean, I talk to you guys. जब मैं शुरू सुबह 10 बजे आया तो इंट्रोडक्शन में a lot of college guys, थर्ड ईयर वाले भी यहाँ पे थे. मैं थर्ड ईयर में, I mean, can't even imagine back in 2010.
क्या कोविड वाले? हाँ अच्छा आपको कोविड वाले हो, तो मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, तब तो ये सब कुछ होता नहीं था। आई मीन आई रिमेंबर दैट बिफोर स्टार्टिंग अ स्मॉल एनेक्डोट शेयरिंग विद यू, मेरी गर्लफ्रेंड है छोटी, तो शी इज गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग। शी कॉल्ड मी 2-3 हफ्ते पहले, शी लाइक कि भैया इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। मैंने कहा कंप्यूटर ले ले, और तो क्या है, जो नहीं लेता वो भी कंप्यूटर का ही काम करता है, जो कंप्यूटर ले ले। शी टोल्ड मी कि वो तो लेना ही है, अब आप ये बताओ स्पेशलाइजेशन किस में लूं? BTech in computer science with specialization in DevOps, in cloud computing, in data structure, sorry, data analytics, in AI. And I'm like, भाई क्या चल रहा है? मतलब कॉलेज में ही इनको आप DevOps सिखा दो। हम यहाँ पे 12 साल किसके खड़े हैं यहाँ पे DevOps सीखने के लिए बातें कर रहे हैं, और आजकल कॉलेज के बच्चे कॉलेज में DevOps सीखना स्टार्ट कर दिए। Honestly, I don't know सही है या गलत है। मुझे लगता है कॉलेज should be very free in terms of learning। मतलब आपको अपनी तरफ से एक्सप्लोर करने का आइडिया मिलना चाहिए, तब 4 साल बाद जाके आप डिसाइड करो कहाँ जाना है, रादर देन की पहले ही घुसा दिया कि भैया क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने हैं 4 साल। थोड़ा सा मुझे लगता है स्ट्रीम नैरो डाउन हो जाता है, बट पर्सनल कॉल। कूल। सो पोकरबाजी बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते दोबारा बता देता हूँ। इट्स इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। आओ अकाउंट बनाओ, पैसे डालो, खेलो, हारो, अच्छी बात है, जीतो और भी अच्छी बात है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसा मिल जाता है। आप जीतो आप हारो, और मेरा प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिथम क्या है? पास हो सकता है। So we have almost 1 million of user base है, 35 lakh trusted customers हैं, we run cash games, we run tournaments। आपने NPS के बारे में सुना होगा, कोड के बारे में सुना होगा। अच्छा बाय द वे, यहाँ से दिल्ली जाओगे तो पूरे रास्ते हर मेट्रो स्टेशन में पोकरबाजी छपा हुआ है, दैट इज व्हाट पोकरबाजी इज अबाउट। रोड पे प्रिंट करने की परमिशन नहीं मिली, तो रोड पे भी छापते थे। तो आइडिया हुआ कि गुड़गांव से जो भी दिल्ली जा रहा है छत्तीसगढ़ ऑफिस में, सब पोकरबाजी देखते हुए जाएंगे, अकाउंट बनाओ फिर। सबको जो भी अकाउंट बनाएगा 5 रुपए क्रेडिट फ्री मेरी तरफ से, ठीक है? वो निकाल नहीं सकते पेट्रोल में। शाहिद कपूर से मिल लेंगे? हाँ? शाहिद कपूर से मिलेंगे? शाहिद कपूर से मार्केटिंग वाले मिले थे, हम टेक वाले यार, सिस्टम 47 के ऊपर भी देखा जिंदगी में, तो शाहिद कपूर मिले। ये स्किप कर रहा हूँ, खाना भी है और सबको पता है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो बिफोर वी एक्चुअली गो टू ऑब्जर्वेबिलिटी, यार हमने क्या करा बाकी में ऑब्जर्वेबिलिटी को यूज करते हुए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जिस देना चाहता हूँ कि where did the journey started from? So, like I said, in 2020 when I joined, this was the architecture, completely monolithic. सब कुछ चल रहा है, एक एक दो सर्वर्स पे चल रहा है, very tightly coupled, very kind of a singleton setup. And obviously उसी टाइम में DDoS भी हो रहे थे, तो उसको स्केल करना, उसको मिटिगेट करना, it was a mess. Trust me, let's not go there. तो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट आया कि यार माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे जाना है, बिकॉज before you even think of doing anything of any sort, you have to achieve this. You have to come to this level at your own speed, at your own convenience, in your own terms, using your own tools, whatever suits you. But this transition is very important before you even try out anything. So this is what we did. Website थी, एप्लीकेशन थी हमारी, लॉगिन चलता था, APIs थी, पेमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रियल मनी गेमिंग है, पैसे का लेन देन चलता है, तो वो अगर बंद हो गया तो फिर ऐप चलाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे वेंडर्स इंटीग्रेट करते हैं साथ में, तो उनकी APIs चलती थी। तो देन देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा, सारा AWS पे, वी आर हेवीली AWS बेस्ड यूजर, ऑलमोस्ट 85% ऑफ आवर इंफ्रा इज ऑन AWS, 10% ऑन GCP एंड रिमेनिंग 5% ऑन DigitalOcean। How many of you know DigitalOcean भी क्लाउड है, चलता है कुछ? भाई बहुत सस्ता है, S3 से इसलिए चलाते हैं। कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग अगेन, मैं बीच बीच में इंटीग्रेट बोलता रहूंगा, कॉस्टिंग पे हमेशा फोकस रखना है यार, बिकॉज कोई भी टूल ले आओ, कोई भी ऑटोमेशन कर लो, कितना ही माइग्रेशन कर लो, कितनी ऑब्जर्वेबिलिटी चला लो, कॉस्ट बढ़ गई ना। तभी उस टाइम में 80% बोला CPU का आपके क्वेश्चन पे, बिकॉज अगर 80% नहीं चल रहा है ना तो भाई पैसा वेस्ट हो, इसलिए उसको 80% चलाओ ताकि सर्वर का पूरा पैसा वसूल निकले। तो जब वो सुंदर सा डैशबोर्ड मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना होता है ना, बड़ी गाली पड़ती है। आई डू दैट, सो आई नो दैट। तो ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर था, हमने APIs को स्प्लिट कर दिया। इनिशियली हमारा गेम आता था, CDN लगाया, API गेटवे, लोड बैलेंसर लगाए, स्टैटिक कंटेंट CDN के पीछे डाल दिया, लैम्डास चलाए बहुत सारे फॉर स्केलिंग। सो प्रीटी मच बेसिक आर्किटेक्चर है, आप सबको मोस्टली पता ही होगा। कॉलेज वालों को नहीं पता है तो ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, आप पढ़ लेना। एवरी सर्विस डूइंग इट्स ओन पर्पस जो है यहाँ पे। बेसिकली आर्किटेक्चर को स्प्लिट करके माइक्रो सर्विस में सारी APIs को, जो क्रिटिकल कोर APIs थी, उनको अलग अलग स्प्लिट कर दिया। Cool. चलो, memes, I love memes. I'm a huge fan of Chandler Bing.
मेरे टॉक में sarcasm बहुत मिलेगा. We use logs to debug errors and create alarms. You guys are getting logs? बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे डेवलपर्स को लॉग्स का कंसेप्ट ही नहीं पता था. एप्लीकेशन चलाया, कोड बनाया, डिप्लॉय करा, काम चल रहा है, फट गया, भाई तेरी जिम्मेदारी है, तुझे क्यों फट गया. अब मैं क्या देखूं भाई, मेरे सर्वर के लॉग में कुछ आ ही नहीं रहा, मैं क्या बताऊं. एप्लीकेशन के लॉग्स तो निकालो, उसमें देखो क्यों फटा है. जावा है, पाइथन है, नोड है, पीएचपी है, व्हाटसोएवर इट इज, वेयर आर योर एप्लीकेशन लॉग्स. So it is very important that even if we talk about observability, or if we talk about normal perception in terms of development and deployment, logging is very important for you to understand exactly what is happening in your application. आपने कोई एप्लीकेशन होस्ट करके डिप्लॉय करी है, सर्वर पे चल रही है, क्लाउड पे चल रही है, उस पे क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसका वो कहते हैं ना वही खाता जो निकलता है हर चीज का, वो आपके लॉग्स में निकलता है. इट इज हेल्पफुल फॉर द डेवलपर्स, it is helpful for the ops guys, for the DevOps guys, SRE, जो भी बोल लो, it is very important from audit purpose also. कल को अगर आपका सर्वर हैक हो गया या आपकी वेबसाइट हैक हो गई, तो अगर किसी ने वेबसाइट को हैक करके उसमें कुछ एक्शन दिए हैं, तो वो भी आपके लॉग्स में निकल कर आएंगे. दैट इज व्हाई लॉगिंग इज द की है. मॉनिटरिंग करनी है उसकी या उसके ऊपर अलर्ट्स लगाने हैं, वो भी तभी होगा जब लॉग्स इनेबल होंगे. अगर लॉग्स ही नहीं है तो अलर्ट्स किस पे लगाओगे? यू आर अलर्टिंग एंड मॉनिटरिंग विदाउट डोंट. मोटा मोटा प्राइमरीली. Obviously, metrics are also there, but from application perspective, having your logs enabled and keeping them running is very important. बताने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ, खाना हो रहा है. Case 1, good. इसको जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे. अच्छा, I was told कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए, तो मैंने पीपीटी में दिमाग नहीं लगाया. पीपीटी कौन देखता है? मेरे को आती भी नहीं अच्छी बनानी, और मैंने यही से नहीं बनवाई है, ट्रस्ट मी. हाँ, बट ये स्क्रीनशॉट्स है, ये हमारे खुद के स्क्रीनशॉट थे, ये हमारी मेहनत है, मेरी टीम मेरे साथ आई आज उनकी मेहनत है. और ये सब आपको हमारे ब्लॉग्स में मिल जाएगा. बाजी गेम्स मीडियम पे जाके सर्च करना, 6 ब्लॉग है, 6 में से 5 मैंने लिखे हैं, तो आपको वहाँ मिल जाएगा. ओके, व्हाट डिड वी डू? ELK यूज करना स्टार्ट करा हमने. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 21. व्हाई ELK? उस टाइम पे वी आर स्टिल रनिंग इन अ स्टार्टअप मोड. आज पोकेबाजी को दिस इज द 10th ईयर रनिंग, बट वो कहते हैं ना, सम startups are always in a startup mode. So we are still running in a startup mode, and startup का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कॉस्ट. तो आपको जो भी सोल्यूशन लेकर आने हैं वो ऐसा लेकर आने हैं जो मिनिमलिस्टिक कॉस्ट में विद मिनिमलिस्टिक डाउन टाइम रन कर सके. So we obviously had no option other than ELK. That is when we picked up ELK. What did we do with ELK? Again, like I said in the previous slide, logs, ALB, ECS, application, CDN, WAF, सारा का सारा एक S3 बकेट में डाला और ELK को फीड कर दिया. अभी एक बार आपने लॉग्स ELK को फीड कर दिए, फिर ELK विल डू इट्स ओन जॉब. फिर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. कपल ऑफ मॉडिफिकेशंस हियर एंड देयर एज पर योर ओन नीड. बाकी ELK को एक बार फीड मिला, उसके बाद ELK विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग व्हाटएवर यू नीड. नेक्स्ट स्लाइड पे आई विल शो यू द कस्टम डैशबोर्ड दैट वी क्रिएटेड ऑन Kibana यूजिंग द सेम log. I'll start with one example wherein I'm showing you the user traffic that comes in using which is filtered by a WAF service, AWS WAF. Obviously rate limiting rules हैं, block city rules हैं, multiple rules हैं. सारे logs S3 में जाते हैं, Kibana उसको read करता है. We also have a custom lambda function जो हमारे raw rules को customize करते हैं. I'll tell you how and why. So I think this is clear. Move on. Okay. लाल है, पूरी स्लाइड लाल है. वो मीम में आ रहा है, पूरा ठेला लाल है वाटरमेलन वाला. तो ये सी पूरी स्लाइड लाल है. First slide is basically, and the second slide is basically DDoS, जो बाजी के प्लेटफॉर्म पे होंगे on पोकरबाजी. What do you see? From one unique IP, 60,000 requests, and this is just a very small number. I'm telling you, trust me. There's an official case study which AWS did with us. I wrote that case study. It is available online. We were under attack on multiple days, and it was more than 7,000 IPs which were doing DDoS on Bazi on 50 days continuously, and that is what we were withstanding using our infra, and this is just a glimpse of what we were facing. So इस तरीके से 4,000 random unique IPs, 120,000 hits randomly from different city, different location, different payloads, different requests. फिर we used to filter out by IP. किसी एक IP को ब्लॉक करने जाते थे तो we used to see कि उस IP से क्या आ रहा है,
तो वी यूज्ड टू सी 60,000 रिक्वेस्ट रैंडमली किसी आईपी से निकल कर आ. नाउ इमेजिन फर्स्ट ऑफ ऑल टू लर्निंग्स फ्रॉम हियर. इफ यू डोंट ब्लॉक दीज रिक्वेस्ट, आपका इंफ्रा खत्म. आप कितनी ही स्केलिंग लगा लो, आप कितने ही सर्वर डेस्क पे चले जाओ, देयर इज ऑलवेज अ कांसेप्ट ऑफ कोल्ड स्टार्ट. देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ प्री वार्मिंग अप योर इंफ्रा at random times when you are not even expecting anything above your normal traffic. मतलब अगर ट्रैफिक 100 रिक्वेस्ट का है, 200-300 तक समझ में आता है, लेकिन वही अगर 1,00,000 रिक्वेस्ट हो जाएगा, ट्राई करके देखना क्यूए पे, मजा आएगा. पर AWS का बिल आ जाएगा, मेरे पे मत मारना. ठीक है, तो ये सीन था. नाउ व्हाट डिड वी डू ओवर हियर? ऑब्वियसली CloudWatch में लॉग्स जा रहे थे, S3 में लॉग्स जा रहे थे, वी वर यूजिंग आवर CloudWatch सर्विसेज आल्सो, बट वी वांटेड टू यूज ELK इन दिस केस बिकॉज़ दो पॉइंट थे. एक तो ELK की डैशबोर्डिंग बहुत अच्छी है, सेकंड पॉइंट ELK की अलर्टिंग बहुत अच्छी. करेक्ट. ये डैशबोर्ड्स इमीडिएटली जैसे ही हिट आते थे, वॉफ की रिक्वेस्ट हमारी ब्लॉक होती थी, उन सारी ब्लॉक रिक्वेस्ट के लॉग S3 में जाते थे, वो S3 से निकल के किबाना में फीड होते थे, और किबाना में अगले 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर हमारे ये डैशबोर्ड बनने स्टार्ट होते थे. तो I mean, imagine a situation where 10 people are sitting in a war room at 2 or 3 in the night and they want to understand कि 50-7,000 IP से request आ रही है, कहाँ किसकी IP को block कर. This is just one single screenshot that I am showing you. You can understand the gravity of the situation wherein 10 systems पे 10 dashboard पे यही चल रहा है. This is one specific use case which I wanted to pick up and start with in this presentation because it is very important to keep your infra safe. I mean, obviously, you can use Cloudflare, you can use whichever, you can use Akamai, you can use AWS WAF, whichever service you want to use. The idea is to understand that when those hits are coming, that those bad requests are coming, how are you monitoring at not real time? First of all, real time is a myth. Nothing is in real time. Okay? SL is also a myth. Real time is also a myth. Nothing was in real time, but क्लोजेस्ट टू रियल टाइम. जैसे जैसे हिट्स आ रहे हैं 2, 3, 4 मिनट के अंदर अंदर आपने कितनी जल्दी आइडेंटिफाई करा और ब्लॉक करना स्टार्ट करा. आई मीन ब्लॉक तो आपकी सर्विसेज कर रही थी, बट आपने उन पे क्या एक्शन परफॉर्म करा, दैट इज व्हाट द पॉइंट. सो इन द प्रीवियस स्लाइड इफ यू सी, दिस वाज हैपनिंग ऑटोमेटिकली. रेट लिमिट से ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक सिटी से ब्लॉक हो रहा है, बट देयर वर कस्टम रूल्स आल्सो. अब मैं उस कस्टम रूल्स की डिटेल में नहीं जाता बिकॉज़ वी आर हियर टू टॉक अबाउट ऑब्जर्वेबिलिटी, बट या दोस कस्टम रूल्स आर आल्सो हेल्पिंग अस इन आइडेंटिफाइंग द बैड. Cool. Moving on. Again, custom dashboards. 4th of August, 5th of August, 6th of August, approximately 1.5 lakh IPs, 1 crore something a count of request. See the pattern. The request starts from 20,000, it goes to 220,000, come down, goes up, goes down, goes up, goes down. This is the scale that we are talking about. This is the scale that we see at Baazi every single day. This is while specifically, recently on 4th of August, we started a new series IPL, and whenever a tournament series starts, like it is not as big as NPL, which is National Poker Series or GOAT, this is also one of our big series that we started. Whenever a series used to start, अभी आप देख रहे हो सब बढ़िया चल रहा है, थोड़ी थोड़ी रिक्वेस्ट आ रही है, and ये जो peak time है ना, this is around 8 PM when the tournament actually starts. 8 PM पे when the tournament starts, from 7:58 PM till 8 PM, 2 मिनट के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन होते हैं. Thousands of users register, log in into the app, register for the tournament, sit on the table and start playing that game. Now what I'm showing you right now is just one of our API endpoints, and we have close to 50 to 70 odd such API endpoints. And these are the request count on that one single endpoint that we are talking about. Why? Because obviously, जैसे कोई अभी we were talking about Big Billion सेल या फ्लिपकार्ट की सेल होती है, तो जैसे ही सेल स्टार्ट हुई तब वेबसाइट पे गए, हिट मारना स्टार्ट करा, अपने प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वही सेम चीज यहाँ पे होती है. इन्फ्लक्स ऑफ द यूजर इज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. एकदम मोमेंटरीली नॉर्मल ट्रैफिक है और पीक है, नॉर्मल ट्रैफिक हुआ और पीक हुआ, नॉर्मल ट्रैफिक हुआ, पीक हुआ, फिर ड्रॉप हो गया. जैसे टूर्नामेंट खत्म हुआ, 6-7 घंटे चल गए, दिन अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे खत्म होते होते वो पीक आपका ड्रॉप होना स्टार्ट. नाउ वन माइट वंडर, या तो मैं स्केल करके चलता हूँ पहले से ही, फ्री वार्म अप करके छोड़ दिए, 2 की जगह 10 कंटेनर चला दिए, रिक्वेस्ट आएगी, उसको हैंडल करेगी, जैसे रिक्वेस्ट कम होगी मैं उनको कम कर दूंगा.
That is one option that you have. The other option is to make sure that when you are focusing on the scaling, you are also targeting that there should not be any throttling. There should not be any gateway error. There should not be any lambda concurrency error which is failing your APIs. जो बहुत probable है होने का, because जब इतना लंबा throttle आता है, इतनी सारी request आती है, your lambda, your backend infrastructure throttle, and it starts giving you timeout and concurrency issues, throughput issues, latency. This is again using ELK that we were monitoring all of that again almost at runtime to understand the request pattern that we are getting. ये सिर्फ I am showing you 10% of what we do because obviously ना इतना टाइम है और ना मैं आपको पूरा आर्किटेक्चर और पूरा बैकएंड का एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट थिंक ऑफ इट एज जस्ट द फ्रंट फेस ऑफ व्हाट वी सी बिकॉज़ के बाना आपको वही दिखा रहा है, फ्रंट फेस में दिखा रहा है कि पीछे चल क्या है. अभी पीछे ग्राफाना है, Prometheus है, PMM है, ELK का खुद के कंपोनेंट्स हैं, OpenSearch है, etc. I mean, there's a lot going on, which is actually managing all of that infra, scaling at one side, and also making sure that your observability, your monitoring, your threshold, your metrics are not failing. And at any given runtime पे कुछ भी issue आता है, any error comes, you are logging that at a place wherein your developers and your DevOps guys are constantly putting metric filters on those keywords or on those errors which are again coming to you as errors. That is what we see over here at scale. Cool? ठीक है ना, नींद तो नहीं आ रही, खाना इतना हटना नहीं हुआ, थोड़ी देर और. Alright, APM. We all spoke about APM. अभी पहले वाले सेशन में भी APM की बात हुई. We all understand what is application performance monitoring. We also spoke about why is it important. We spoke about tracing. We spoke about these metrics. We spoke about throughput, latency, P99, P95, right? ELK at this point of time, अभी होना क्या स्टार्ट हुआ? चलो ठीक है, अलर्ट लग गए, इंफ्रा मॉनिटर हो रहा है, मोटा मोटा पता चल रहा है, स्केल अप हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है, वहां तक ठीक है. अब एप्लीकेशन फटना स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन एरर्स आने स्टार्ट हो गए. अभी मुझे अंदर घुसना है कि मेरी एप्लीकेशन फट क्यों रही है. आई वांट टू स्टॉप दैट डिस्कशन बिटवीन माय डेव एंड डेवऑप्स गाइस कि भाई तू चेक कर नहीं, तू चेक कर कि तेरा एरर है कि मेरा एरर है. पीछे वो डेटाबेस वाला भी कोना दिल पकड़ के बैठा कि डीबी ना फट जाए तो सब मेरे ऊपर आ जाएंगे. We'll come to that also because that is also very strong and very important component. When you enable APM for a particular application or a service or your entire gambit of application, you start understanding कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर चल क्या. बॉडी का एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं, फुल बॉडी चेकअप करते हैं, पता चलता है ना अंदर क्या चल रहा है. वो एप्लीकेशन के अंदर क्या चल रहा है, वो फट कहाँ रही है. वो इनिशियल ट्रिगर पे फट गई है, उसको डीबी डेटा आके नहीं दे पा रहा है, वो कैशिंग लेयर पे फट गई है, वो वेंडर के रिक्वेस्ट टाइम आउट के चक्कर में फट गई है, किसी का ओटीपी नहीं आ पा रहा इसलिए आपकी लॉगिन एपीआई फट गई है. आप जियो लोकेशन चेक कर रहे हो लेकिन जियो लोकेशन वाले की खुद की एपीआई फटी पड़ी है इसलिए आपका लॉगिन बंद हो गया. क्या चल रहा है? This is what you get when you enable APM. This is what APM tells you when you pick up a particular API, a particular endpoint, or even the minutest request of any post or get request, which shows you the latency, the throughput, failed transactions, अंदर घुस के drilling down to the last level जहाँ पे सेलेक्ट की query चल रही है. This is where from the data is coming from. अभी इसके ऊपर you see multiple layers. We were talking about trace ID, right? Now trace ID, why is it important? Front end, back end. Front end वाले को अगर trace ID मिला है आपके एप्लीकेशन का, अगर वो सेम ट्रेस आईडी ट्रेस होते होते डीबी तक आ गया तो मजे ही मजे. अगर वो नहीं गया तो फिर सर पकड़ के बैठे रहो, भैया क्या इशू है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस? राइट, वी ऑल हैव डन दैट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to follow the same trace from top to bottom or vice versa. Only then you can connect the dots and figure out where the problem lies. और जब तक ढूंढोगे नहीं तो फिक्स क्या करोगे मेरे को? ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ढूंढोगे कैसे? ऑब्जर्वेबिलिटी लगा कर ढूंढोगे, नहीं तो सोचते रह जाओगे कि इशू कहाँ है. कई बार जेनरिक इशू जो 5xx 4xx होते दे डोंट टेल यू द राइट पिक्चर. आपके डेवलपर ने किसी एरर पे कस्टम एरर डाल दिया 422. अब वो अलार्म बज रहा है 4xx. जनता परेशान है 403 होगा, 4xx तो और तो कुछ होता नहीं है. तो डेवॉप्स वाले को पता ही नहीं है 422 लगाकर बैठे हुए हैं.
वो देख रहा है फॉर्मेट रह रहा होगा कहीं ना कहीं, पक्का वो इंफ्रा डबल शूट करने में बैठ गया, बाद में डेवलपर होता है कुछ नहीं, इग्नोर करते 42 है, मैंने लगा रखा था, कोई काम की चीज नहीं है। ये होता है, दिस हैपेंस। व्हाई? बिकॉज़ जेनरिक एरर्स आर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। आप अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में चल गया। एंड योर ऑब्जर्वेबिलिटी, योर टूल्स, I actually kind of differ with one point what you mentioned. I understand and I agree कि observability is from us. How strong or how intelligently we put up our other resources. But I also agree that tools are also very important. The tools are basically your pathway to reach out to that point where you figure out where do I have to fix. Most importantly, what do I have to fix. टूल नहीं होगा ना, आप इवेंचुअली पहुंच जाओगे 4 डेवलपर साथ में बिठा के, इट विल टेक टाइम, इट माइट रिक्वायर मोर एनर्जी एंड मोर रिसोर्सेज, दैट इज व्हाई द टूल्स आर देयर। अभी न्यू रिलीफ को इंटीग्रेट करो, इतना पैसा लेके जाएगा भाई, क्यों पैसा लेके जाएगा, टाइम बचाएगा ना तभी तो, क्योंकि वो बोलेगा यार दिमाग मत लगा, यहाँ फट रहा है इसको फिक्स कर, दैट इज व्हाई। सो ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर एपीआई। मूविंग ऑन, अलर्ट मीन, ओह अनदर मीन। अच्छा, can someone tell me what is wrong with this picture? Emotions are different from according to numbers. Okay. तो दिक्कत है। What else? Yes? अभी वो हो गया तो फिर तो ये लटक लेगा। वो आप तो एकदम ही रात में पहुंच गए, इतना भी बुरा हाल नहीं हुआ है, बट स्टिल good guess. Okay. Anything else? Kind of. See, most of you are actually right. ये भाई अभी दांत दिखा रहा है, अभी रो रहा है, क्यों? If you think thoughtfully, alert नहीं आएगा तो भाई सब बढ़िया है, मजा ही मजा, right? बट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी, अगर अलर्ट नहीं आ रहा है तो ज्यादा डरने की बात है कि भाई अलर्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना 30 मार्क हमारे में तो कोई नहीं है कि हमारे इंफ्रा में अलर्ट नहीं आ रहा है। जब माइक्रोसॉफ्ट बार बार डाउन जा रहा है तो भाई हम तो क्या, हमारे को तो अलर्ट वाला बंदा ही बनता है, इतना 30 मार्क का कोई नहीं। अगर ये सिचुएशन है तो यू शुड रादर बी वरीड कि चल क्या है, ढूंढो घुसो सिस्टम के अंदर, मेरे अलर्ट के ट्रिगर्स तो नहीं बंद हो गए, मेरी एप्लीकेशन चल रहा तो नहीं बंद हो गई। तो आज की डेट में जब पहले हम ये सोचते थे कि यार ये सिचुएशन है तो बहुत मजे की बात है, नहीं माय फ्रेंड्स, आज की डेट में अगर अलर्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यू नो किसी चीज का अलर्ट आ रहा है, जाके देख ले, फिक्स कर दे इससे पहले कि पत्ता बैठ जाए। और अगर अलर्ट नहीं आया तो फिर बहुत ज्यादा टेंशन की बात है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा फिक्स क्या कर रहा है। फिक्स तब करोगे जब आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई कौन करेगा? टूल करेगा। टूल आइडेंटिफाई करके बताएगा कैसे? अलर्ट से। घंटी बजाएगा, टीम्स बजाएगा, स्लैक बजाएगा, मेल करेगा। अभी रात को अगर घंटी नहीं आ रही है, पेजर ड्यूटी की, ऑफ नहीं की, तो कई लोगों को नींद नहीं आती है, उनको लगता है रात भर फोन नहीं बजा, कैसे हो गया भाई, इतना सही चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफाना, चलो अब थोड़ा सा टॉपिक डिविएट करते हैं। लेट्स कम टू ग्राफाना। साइड छोड़ रहा हूँ, गार्डन हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। डीबी अलर्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डीबी की बात करी थी। डीबी वाले ऐसे दिल पकड़ के बैठे रहते हैं, उन बेचारों को ज्यादा कोई पूछता नहीं है, उनको लगता है उनका काम क्रिटिकल नहीं है, मतलब दुनिया को लगता है उनका काम क्रिटिकल नहीं है। डेवऑप्स, इंफ्रा, प्लेटफॉर्म, आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस, इधर एकदम पूरा फैला के रख दिया है, क्लाउड लोड तक। यह डीबी है, ये रुक गया ना, खत्म है आदमी। अगर आपका डीबी सही नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन छोड़ो, आपकी खुद की जिंदगी खराब हो जाएगी। डेटाबेस अगर ऊपर नीचे हो गया, डेटाबेस अगर हिल गया, डेटाबेस में अगर क्वेरी फंस गई, डेटाबेस में अगर लोड फंस गया, तो क्या होगा हम सब जानते। बेसिक स्क्रैच, सबसे बेसिक एप्लीकेशन जो कॉलेज वाले, थर्ड ईयर वाले भाई लोग मेरे और बहनों भी, ये तो सबने हम कॉलेज टाइम से करते आ रहे ना। एक छोटा सा डेटाबेस लेंगे, उसमें 4 एंट्री डालेंगे, रमेश, सुरेश, हितेश, नितेश, सेलेक्ट स्टार चल के एप्लीकेशन में वहां पे आना चाहिए, छोटा सा हेलो वर्ल्ड वाले पेज पे एंटर करो तो उनकी डिटेल आनी चाहिए, राइट। जॉइन वॉइन हमने पढ़ा है। वो डेटाबेस इज द हार्ट एंड द हेल्थ ऑफ योर कोर क्रक्स एप्लीकेशन। इतना सुंदर फैंसी स्क्रीनशॉट लगाया है ना, तो बढ़िया लग रहा है देखने में। इससे पहले मैंने दूसरा लगाया था, फिर मैंने उनको दूसरी साइड भेजी, मैंने मेरी टीम को बोला बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट निकालना, देखने में लगने से भाई तोड़ रहा हूँ। तो ऑनेस्टली बताऊं तो ये वाले मैट्रिक्स हम भी ज्यादा मॉनिटर नहीं करते, वो मैंने ऐसे फंडे वाली को लगा दिया। बट
coming to the main crux of the point, your database monitoring. अभी आप कुछ भी यूज करो, हम EC2 पे भी डेटाबेस चलाते हैं, हम RDS भी यूज करते हैं, हम Aurora भी यूज करते हैं, हम MongoDB यूज करते हैं, हम DynamoDB यूज करते हैं, हम DocumentDB पे POC चलते हैं. तो 5-6 डेटाबेस बता दिए मैंने, ये हवाबाजी नहीं है, सही कह रहा हूँ. अभी सब डेटाबेसेस चल रहे हैं, तो NoSQL को एक बार अलग छोड़ दो. NoSQL के अलग पेन पॉइंट बताऊंगा, अभी 5 मिनट में आता हूँ उस पर. अभी पहले बेसिक MySQL डेटाबेस पर आ जाते हैं. अब अगर आपके MySQL डेटाबेस पे आपने अलर्टिंग नहीं लगा रखी है, irrespective of any tool that you use, we are here to talk about observability. We are not here to talk about licensed or open source. Obviously CNCF का इवेंट है, open source ज्यादा बोलूंगा, licensed का नाम नहीं लूंगा, अभी और बनाएंगे नहीं. लेकिन irrespective of whichever tool you use, it is very important to focus on your database monitoring. We are using Grafana. We are also using CloudWatch. Sorry, Zamir, we are also using Datadog. और आर मॉनिटरिंग. Datadog मेनली APM के लिए लिया है, अभी रिसेंटली जनवरी में लिया था. बहुत सारा इनहाउस बोला तो टीम बोले सर इतना खर्चा हो रहा है तो एक टूल और ले लेते हैं चलो फिर इसलिए Datadog नहीं लिया. तो पीछे मेरी टीम बैठी वो यही बोलती थी, सब टूल ले रहे हैं, डेवलपर टूल ले रहा है, क्लाउड का इतना बिल जा रहा है, हम नहीं ले सकते टूल. फिर खूब डिस्कशन के बाद Datadog फाइल तुम ले लेंगे इसके बाद, इतना बड़ा इंफ्रा कहीं ना कहीं तो फिटिंग कर ही लेंगे. Coming back to CNCF again and open source, not talking about Datadog and Neuralink. Neuralink both the one went online. So Grafana we are using for our database integrations, for our workloads. It has helped us in real time at very crunch situations because जो मैंने आपको ये previous graph दिखाया था, imagine at this point of time DB में क्या चल रहा हो. Just think about it. आप proxy लगा दो, connection pooling कर दो, रेट लिमिटिंग लगा दो, वो सब भी डीबी पे कर सकते हो. बट इवेंचुअली अगर आप वो कर रहे हो तो यू आर ब्लॉकिंग योर रिक्वेस्ट. यू माइट एक्चुअली बी ब्लॉकिंग योर जेन्युइन रिक्वेस्ट, योर पॉजिटिव रिक्वेस्ट. वो रिक्वेस्ट भी ब्लॉक होगी अगर आप ये सारे ऑप्शन फॉलो करोगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट पीक लोड ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर योर डेटाबेस शुड बी हेल्दी, शुड बी एबल टू रिसीव ऑल दोज रिक्वेस्ट, शुड बी एबल टू सेंड द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल दोज रिक्वेस्ट इन रियल टाइम. ऑब्वियसली थ्रॉटलिंग होगा, ऑब्वियसली रेट लिमिटिंग के चक्कर में ब्लॉकेज होगा, ऑब्वियसली सीपीयू या मेमोरी ऊपर नीचे होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीस मेट्रिक्स दैट यू सी, दिस विल आल्सो हैपन. बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यूजिंग दीस टूल्स एट रियल टाइम इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल ग्राफाना, अभी आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन ग्राफाना में इंटीग्रेट कैसे करोगे, बहुत बेसिक सेटअप है, डालो. अभी फॉर एग्जांपल we are running ELK in production on a small T3 large instance with 200 GB of drive. That is it. कोई क्लस्टर नहीं है, कोई बड़ा सेटअप नहीं है, कोई तोड़फोड़ तामझाम नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रा मैनेज करने के लिए नहीं. Why? प्रॉपर इंजीनियरिंग. 80% पे चलाते हैं CPU, फट जाएगा तो कोई बात नहीं, स्केल कर देंगे, लेकिन पूरा रिसोर्स का खून चूस के चला रहे, क्लीन अप करना है रेगुलरली डेटा को ताकि लॉग्स आए. 7 डेज की रियल टाइम लॉग ELK पे जाओ, कभी भी जाके देखो किसी भी एप्लीकेशन का सब दिख जाए. सिमिलरली ग्राफाना का सेटअप चलाओ, बेयर मिनिमम सेटअप चलाओ, आपके सेंसर से इंटीग्रेट करो, बहुत इजीली अलर्ट्स आएंगे. इन सॉरी डेटा आएगा तो उम्मीद है पीछे से सब बढ़िया से निकाल के डेटा दिखा देगा. इन पे अलर्ट लगाओ, फोन की घंटी बजाओ, लाइव ग्राफाना कूल. अभी CNCF और K8 का बात नहीं करा तो भाई पक्का अगली बार नहीं हुआ. ठीक है, तो K8 का बात करना तो बहुत जरूरी है. क्यूबरनेटीज हॉट शॉट टॉपिक है. जैसे किसी ने बोला था ना AI क्या, बिना आज के जमाने में कुछ नहीं है, वैसे K8 के बिना भी कुछ नहीं है. लेफ्टर्न वाले भाई का K8 तो बहुत इंपॉर्टेंट है. Cool. So what are we doing with Grafana? I mean, this guy very well explained in his demo and his PPT about specific integration of Grafana with your platform also, with EKS clusters also, AKS clusters also, in-house setup of Kubernetes also. What we are doing over here is, this is a screenshot that you see of our ISTIO, this is what we use for our clusters. And Istio के अंदर we also use a process which is called Chiari. I'm not sure how many of you know that. तो वो इंटीग्रेशन करके Istio के अंदर we see a screenshot of our entire cluster. You see यहाँ पे namespace आता है आपका, your workload, what is your resource which is Prometheus, where are you running it, and the entire screenshot. I mean, I cannot give you all the screenshots over here obviously, but I just wanted to tell you the gist of it. Why we are doing it? Again, लोड आता है, टूर्नामेंट चलते हैं, टूर्नामेंट स्टार्ट होता है,
वी ऑलरेडी डू प्री वॉर्मिंग, बट उसके बाद भी लोड आता है तो स्केल जाता है। स्केल जाता है, मल्टीपल पॉड्स है, हर पॉड में इसकी वो क्लस्टर चल रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, प्रॉक्सी चेक कर रहा है, रिक्वेस्ट आउट जा रही है, डेटा आउट क्या जा रहा है, उसके अंदर की मॉनिटरिंग क्या चल रही है, ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली एंड वेरी कामली इंटीग्रेटेड विद ग्राफान। You can use Devtron, पैसा दो. You can use multiple other tools also. They will obviously help you. They will give you a whole lot of insights on what you can see on this black screen. But the point is, it is your personal call. It is your organization's call. If you are willing to spend on resources, on software, on tools which are licensed, they will always help you out. I will never say they won't help you. They will definitely help you. But the point is, अगर आपको खुद से ऑब्जर्वेबिलिटी करनी है, अगर आपको अपने इंफ्रा को खुद से मैनेज करना है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ऑब्जर्वेबिलिटी इज डिफिकल्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, इफ यू नो योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन एंड आउट, if your your developer knows your application in and out, and if you pick up the right tools, open source right tools, I from my experience you are set. Now यहाँ से अगर स्केल आती है, अगर काम बढ़ता है, इंफ्रा बढ़ता है, एप्लीकेशन बढ़ती है, देन ऑब्वियसली यू कैन थिंक ऑफ गोइंग टू दैट प्लेटफॉर्म, राइट? हम 3 साल से ELK चला रहे थे, फिर इस साल जाके मैंने डेटालॉग ऑनबोर्ड करा क्योंकि मुझे नीड लगी, नॉट दैट ELK मेरा काम नहीं कर रहा। सिमिलरली क्रिएट की मॉनिटरिंग के लिए कह लो या फॉर दैट मैटर एनीथिंग एल्स, यू कैन वेरी वेल यूज ऑल द लाइसेंस टूल्स, बट इफ यू हैव द राइट माइंडसेट, if you have the right knowledge, if you know how to get the best out of your tools, open source will do for you. One second. पहले फीडबैक देना, फिर क्वेश्चन। बिना फीडबैक के नो क्वेश्चन, ठीक है? पहले दो, क्या दो, फीडबैक दो, मैं खड़ा हूँ, सारे क्वेश्चन करेंगे। Cool. So this was me. I am thinking कि खाना ठंडा नहीं हुआ होगा, hopefully मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपका। I told you one thing, लास्ट में लेवल सबके निकलेंगे, क्यों? क्योंकि लेवल सबके निकलते हैं जो खड़ा रहता है, लेकिन लेवल उनके भी निकलते हैं जो बैठा रहता है, 4 घंटे तक हमें झेल के सुन रहा है, वो भी सैटरडे को बारिश के मौसम में। हैट्स ऑफ एंड तालियां फॉर ऑल ऑफ यू। ओपन फॉर क्वेश्चन, बट पहले फीडबैक दोगे तो क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अच्छा, फीडबैक के पीछे भी थोड़ा सा सावधान है, तो प्लीज डोंट माइंड, मैं थोड़ा पॉजिटिव ह्यूमर में बिलीव करता हूँ, तो थोड़ा सा सावधान। लाइक इट, गुड, डिडंट लाइक इट, टेल अस व्हाट इज रॉन्ग विद यू। Out of the context, like after seeing your talk, something that like you are not in your org right now, but are you still like this much approachable, like in this kind of a mood and like all vibes all the time? मेरी टीम में 4 लोग हैं, उनमें से 3 पीछे बैठे हैं। फील फ्री टू टॉक टू देम। अच्छा, they'll tell you the right person। मैं बोलूँगा अच्छा ही बोलूँगा ना, अपनी तारीफ तो करता ही अपनी है। तारीफ तो करता ही है। मेरे को तो मैं बहुत पसंद हूँ, मैं और तारीफ करूँगा, उससे पूछो ही नहीं। मैं एक दो टेल यू तो तीनों बैठे, ये खड़ा है, फोटो खींच रहा है, ये डेवऑप्स 1 है, एक डेवऑप्स 1 पीछे है, डेवऑप्स 3 है, एक ये में डेवऑप्स का, वो आ नहीं पाया, वो घर पे है। 4 लोग हैं, मैं हूँ, छोटा सा घर, छोटी सी टीम, सब चला। सारे यार क्या लोग कम है, टूल्स ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा। यस सर, हो गया? फीडबैक दिया आपने? अच्छा वाला दिया, मेरे को आएगा मेल पे। हाँ जी, पूछो। ईपीएम के लिए ELK हम यूज कर रहे हैं, इसके कोई ओपन सोर्स टूल भी है, ओपन सोर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ग्राफाना में अवेलेबल होता है? नहीं, स्पेसिफिकली अगर आपको एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करनी है तो आप परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करनी है, आप ELK यूज करो, इंटीग्रेट करो एप्लीकेशन के साथ। कोई भी एप्लीकेशन चल रही है, उसका एक सर्वर चलाओ, इंटीग्रेट करो, सारा डेटा वहां पे आएगा, सारी ट्रेसिंग है। इसका पेड एंटरप्राइज वर्जन भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके यूज केस पे और बिजनेस यूज केस पे कि आपको कितने लार्ज स्केल पे चलाना है। आप उसको ओपन सोर्स चलाओ, जैसे मैंने बोला, एक छोटे से सर्वर में सेटअप करो, थोड़ी सी डिस्क डालो, क्योंकि लॉग स्टैक का डेटा आएगा, उससे मैनेज करो, सारी मॉनिटरिंग। एनी मोर क्वेश्चंस? डीबी के लिए बेस्ट टूल मॉनिटरिंग कौन सा डेटाबेस है? वो SQL लगता है। DynamoDB देखो, आप नेटिव सर्विस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो AWS खुद ही आपको। अच्छा, एक हाँ, गुड, थैंक यू। एक चीज मैं बताना भूल गया, NoSQL डेटाबेस का। NoSQL डेटाबेस में एक चीज ध्यान रखना, प्रोविजनिंग ऑन डिमांड, ऑन प्रोविजनिंग, ऐसा बहुत फटका लगता है।
अगर गलती से ऑन प्रोविजनिंग चला के छोड़ दिया और डेवलपर को बोला जी ले अपनी जिंदगी और उसने भर भर के डेटा डाला तो जो 30वीं तारीख को भर भर के बिल आएगा बहुत मजा आएगा। ये इशू होता है हमारे साथ, होता है सर, हमारे साथ भी होता है। क्योंकि सुबह मुझे मैन्युअली बैकअप लेना पड़ा है। मेरे एक प्यारे भाई डेवलपर ने क्यूए पे एक टेस्ट पीओसी करने के लिए डायनामो बनवाया, खुद नहीं ले लिया, एक्सेल देके बना लिया, उसने चला लिया, पीओसी सक्सेसफुल होके बोल दिया, झंडे गड़ गए, तालियां बज गई, उसके बाद बिल आया उस पर्टिकुलर डायनामो का $12,000, $12,000 नेगोशिएट मुझे करना पड़ा, मेरे अकाउंट मैनेजर के साथ 2000 में ईएमआई कटवाई है हर बिल में कि भैया गलती से चल। तो लाइकवाइज आपके क्वेश्चन का आंसर है कि डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, अगर आप नेटिव सर्विसेज पे ज्यादा फोकस हो, आप आरडीएस और ओरा में यूज कर रहे हो तो आपके पास क्लाउड वॉच खुद बहुत अच्छी मॉनिटरिंग दे देगा, आप उसके पास ऑडिट लॉग है, परफॉर्मेंस इनसाइट्स है, सब कुछ है। लेकिन अगर आपको EC2 लेवल पे आना है, जैसे हम चला रहे हैं, और EC2 लेवल पे अगर आपको मॉनिटरिंग करनी है, ग्राफाना विल डू योर। Two things. First thing, Elastic, are you on 7 or like have you migrated to the 8? 7 pin. And second thing is you're using Kibana, right? Now FileBeat can do a lot of things that Kibana could and at a very lighter version. So do you have plans to move to it? चल रहा है POC, POC चल POC चल रहा है, you're already there। अभी 2 दिन पहले इन्होंने TL के फाड़ दिया था, प्रोडक्शन में डाउन कर दिया, तो भाई ने एक अपग्रेड चलाया, सीधा प्रोडक्शन में चला और डाउन चला गया। experience So that. we are already doing that, वो POC चल रहा है, it will come at a later stage। You should like try Victoria matrices. Sorry? Victoria matrices. ये मुझे नहीं पता। In terms of pricing and costing, it is reducing like lot more. अच्छा, You should try once. thank you, understand the solution। Microsoft was a बोलूँ सैंडविच पैसा बहुत लगा। तुरंत विक्टोरिया मैट्रिक्स की कंटिन्यूटी से बात हुई थी मेरी, तो वो खुद अगेंस्ट था उसके। नहीं करना no POC. So I can feel you brother, I know people जो अपने प्रोडक्ट को पिच करके जाते हैं, पीछे फोन करके बोलते हैं भाई मत। मैं Microsoft में नहीं हुआ। मैंने तो बैठा तो किया है. So there are people who do that कि भाई मत। Because our monitoring costs 5,000 per request costing, because that's a too much of like I Azure agree. monitor is taking too much of cost. यार Azure पे टाइम बहुत लगता है, जरा सा लोड बैलेंसर बना के छोड़ो, इंडिकेटर बना के छोड़ो, इतनी देर में बंदा 4 बार 4 छुट्टा मारा जाके रेडी होता। It's like that. Cool, I think any more questions? Anyone? मेरा क्वेश्चन जो है वो Google से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जो वीडियोस रेट लिमिटिंग के साथ लैम्डा बनाया था ना, लैम्डा वी दैट लैम्डा वाज रीड, हर बार आपकी रिक्वेस्ट रेट लिमिटिंग से लॉक नहीं बिहेवियरल बेस्ड, एग्जैक्टली वो लैम्डा फंक्शन था, दैट वाज अ कस्टम लैम्डा फंक्शन जिसके लिए वी रोट अ पाइथन स्क्रिप्ट जिसको हमने स्क्रैप करा हमारे इनकमिंग रिक्वेस्ट और लॉग से निकाल के क्या पैरामीटर्स निकलता है। अभी हैकर क्या करेगा ना, एक आईपी पे चला के नहीं छोड़ेगा, वो एक आईपी पे 1 लाख रिक्वेस्ट चला के 10,000 आईपी से हर आईपी से 1 लाख रिक्वेस्ट चलाएगा। अभी आप रेट लिमिटिंग लगाते बैठोगे, AWS की रेट लिमिटिंग 5 मिनट के इंटरवल पे काम करती है। वो रेट लिमिटिंग गेटवे की क्लाउड फेरी है, तो उसमें भी एक एडवांस रेट लिमिटिंग जो आपका ट्रैफिक जो इनग्रेस आ रहा है उसको एनालाइज करके बिहेवियरल पैटर्न में चला। तो वो लैम्डा फंक्शन वी डू दैट इन हाउस ऑन अ लैम्डा फंक्शन टू अंडरस्टैंड इन हाउस exactly based on the parameters, based on your payload, based on the request. Your DNS is Route 53 or like Cloudflare? We are using Shield and Waffle. $5,000 वाला महंगा और ऐसा फिर है। मैं फिर Cloudflare नहीं बोलूंगा। तभी तो वो लोग बोले ना इतना पैसा जा रहा है तो एक डेटा नहीं लेते हैं, मैंने दे दिया। वरना जाके बोलते Cloudflare का एंटरप्राइज ले लीजिए, सस्ता ही पड़ेगा। सर आपने कहा है सर नहीं सर मत बोले यार सिद्धार्थ। you are using lambda function to sir limit these kind of requests. Sir, are you planning any automation or sort of certain thing that you can implement in future? तो लैम्डा फंक्शन तो ऑटोमेटिक है वो, that's what we do. No, you are just doing all by yourself. Yes. Are you trying to implement or onboard some other company to do it for you? For No, क्यों करना है? We are doing it manually in house, खुद से हो रहा है. As long as that lambda is sufficing to my request, to the request parameters, not itself going down, not itself breaking on the concurrency, not itself creating a huge bill for me, I don't need any external solution. I would rather pitch this solution to someone else after a given point of time when I am sure that my lambda and this entire POC is capable enough to block the request at any other gateway. Thank you. खाना खाते हैं सब. तो No
more questions. I just want to add one live feedback. Last session, but apparently you have heard all the session very attentively. हर session का speakers एक word आपने निकाल के you have highlighted them. So thank you very much for. Thank you. I tell you why. वो माइक वाले भैया मुझे घुमाने मार रहे हैं. I didn't want anyone else की वो कराने मारना शुरू करे. मैंने सबको इधर में देख रहा था, सबको मॉनिटर कर रहा था, सब थोड़ा इधर उधर हो गए. मैं जिगर के टुकड़े को खोल के निकाल रहे हैं, देख रहे हो, ऊपर नीचे बोल रहे थे. But I was very tentatively, मुझे पता था यार, बाद में बोलना है तो सुनना जरूरी है. अभी तो आप काउंटर क्वेश्चन करके आंसर. Thank you. So thank you all.